Assalamu alaikum. We will start till 9:05. ये आवाज क्लियर है सबको? Walaikum assalam, Aisha. Yes, your voice is clear. Okay. Okay, I will just start in 1 minute. Okay. So should I start? Okay. Yes, Okay. you can start. Okay. Okay. Assalamu alaikum सबको. I welcome you all today for the first orientation session for the CPHQ preparatory class. And I appreciate all the participants who joined today. We have an orientation presentation by Dr. Sarwat Latif. She is in charge at Habib Hall. Sorry, there is some disturbance. Hello. Oh. Hello, Assalamu alaikum. Okay, we will start in a few minutes. Let me introduce to our first faculty member who will give an orientation about the certified professional health in healthcare quality course. We have today with us that Ma'am Sarwat Latif. She is our team lead, volunteer team lead, and also one of our faculty member. She is from the CPHC and working as an sterile compounding in charge in Habib Medical Group, Saudi Arabia. And she is also a certified healthcare professional, also a board certified sterile compounding professional. Over to you, Dr. Sarwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Aisha. Thank you so much. So I will just start. Please let me know if my slideshow, you can see my slideshow. So basically yes, today we visible. will be discussing, sorry? It's visible. Okay, thank you so much. Okay, so basically we will have just the introduction of CPHQ today. I think everyone knows here what does CPHQ stands for. It's basically Certified Professional in Healthcare Quality. First, the disclosure, I have nothing to disclose. Before I really jump into the introduction of the CPHQ, I will just like to have few words about our platform, Giving Back to Pharmacy in Pakistan. So the vision and the mission you can see here, like our vision is basically to empower the pharmacist for the better healthcare. And the mission is, we are the group of volunteer pharmacists which are working around all over the world. And our basic aim is this, that we want to uplift the pharmacy profession. From the Giving Back to Pakistan, currently we have one more preparatory course going on, which is conducted by Dr. Kamran. He's conducting the board certification of pharmacotherapy. Inshallah, in future, we will have for board certification for the onco, infectious disease, ambulatory cares, and various other workshops. So I request from all of you guys to just keep following the Giving Back to Pharmacy in Pakistan. If someone is willing to volunteer or anyone wants to be the part of it, you are most welcome for this one. A brief introduction of our team also. So my team, really, I would like to thank my team and the faculty members. We have some of the faculty members, especially the speakers. We have some of them, I think, joined already with us. So thank you so much.
as you can see, our team, Dr. Muhammad Siddiqui, myself also, I will be the lead, and Zishan, he's the co-lead, and our volunteers, Muhammad Saad, Aisha Hanif, Nurullah. These are our faculty members. As you can see, like some people have joined, will be joining us from UAE. They will be teaching, like we have our variety of speakers. So they will be joining us from UAE, Saudi Arabia, Pakistan. We have Dr. Hassam from Kuwait. So these are, you will be knowing these speakers, and they will be discussing every day, they will be discussing a different topic about the CPHQ course. So let's start our CPHQ. At the end, you will be knowing everything about the CPHQ. Like you will know what is CPHQ, and I will try to make it very easy to understand the basics of the CPHQ. So before I really start into the introduction, I want to ask the participants that if they want to share, because I want it to be interactive. So I want to really ask you, what do you understand by quality professional or healthcare quality professional? Like जो कोई भी participants हैं, please अगर आप लोग chat box में लिख दें कि आप लोगों के मतलब आप लोगों को क्या idea है, क्या perceive करते हैं healthcare quality क्या चीज़ है और quality professional क्या होता है, तो इससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है और हम लोगों को नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने में भी मतलब हेल्प होगी कि हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं. सो प्लीज राइट डाउन, I will just give you like 5 seconds. Just please write down what do you understand by healthcare quality or who is a quality professional. My voice is clear? Yes, ma'am, your voice is clear. Okay. So I have reading the comments, and good to know, like really people are into this. Okay, so what is CPHQ? Basically CPHQ जो है वो Certified Professional in Healthcare Quality होता है. ये सिर्फ एक सर्टिफिकेशन है. इसकी बेसिक एफिलिएशन जो है वो NAHQ के साथ है. NAHQ है नेशनल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर क्वालिटी. इसका रिलेशनशिप जो है वो NAHQ की तरफ से है. इसका मतलब है कि अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग NAHQ वालों से एफिलिएट होंगे, लाइक वो लोग आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे. इसकी एक्रीडेशन जो है वो NCCA की तरफ से है. NCCA बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर सर्टिफाइंग एजेंसीज, बेसिकली ये सर्टिफाई करवाते हैं. लाइक जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे इनके अंडर होंगे. सो जो CPHQ की बेसिक एफिलिएशन है NAHQ, इस NAHQ के इसलिए मैं इसको एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि NAHQ बेसिकली आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर होंगे CPHQ सर्टिफिकेशन के लिए. लाइक अगर कोई फार्मेकोथेरेपी की सर्टिफिकेशन करना चाहता है तो वो BPS में जाके रजिस्टर होते हैं. लेकिन अगर आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल हेल्थ केयर बनना चाहते हैं तो आप NAHQ वालों के पास जाके रजिस्टर होंगे. सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द CPHQ. बेसिक जो CPHQ करने का फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ CPHQ, इसमें 2-3 चीजें आती हैं. इन जो CPHQ का मकसद है वो ये है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए और उनको मेंटेन किया जाए ताकि जो प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी है, हेल्थ केयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो. और लाइक लास्ट पॉइंट ये है कि रिकग्निशन मिलती है प्रोफेशनल्स को. इसका ये हरगिज मकसद नहीं होता कि लाइक अगर मैं CPHQ सर्टिफाइड हो गई हूँ तो बस मैं क्वालिफाइड हो गई हूँ और मैं हेल्थ केयर क्वालिटी में काम कर सकती हूँ. इसका ये मकसद नहीं है. इसका ये मकसद है कि आप लोग सर्टिफाइड हों, आप अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करें और अपनी जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको इम्प्रूव करें.
सो बेसिकली CPHQ प्रोफेशनल जो होता है वो उसके पास एग्जाम बेशक है, लेकिन उसके पास डेमोन्स्ट्रेशन भी होनी चाहिए, लाइक ही कैन डेमोन्स्ट्रेट the skill, the knowledge, competency, and he should have understanding of the basic program. Why CPHQ? क्यों CPHQ क्यों ज़रूरी है? CPHQ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि it will help in promoting the healthcare quality. Healthcare quality को promote करने के लिए, क्योंकि इसमें जितनी भी basic understanding है, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं हॉस्पिटल के, वो सब जो होते हैं वो CPHQ में आपको मिलेंगे. लाइक अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप इसका कोर्स आउटलाइन रीड करें, आप इसका एग्जाम देना चाहते हैं, आप तैयारी करें, तो आपको इन जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एक हॉस्पिटल को एक्रीडिएट करने में या फिर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, तो इसमें आपको सब मिलेंगी. स्पेशली पेंडेमिक के बाद, आफ्टर पेंडेमिक, यू नो, एवरीवन नोज दैट what is the importance of quality. Like I really can see that everyone was really into this. Like हमारे लिए, हमें खुद भी एहसास हुआ कि आफ्टर पेंडेमिक के क्वालिटी कितनी ज़रूरी है हॉस्पिटल की मेंटेन करना. So we will just start basic what will be the exam about. अगर बीच में किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स में लिख दें. I will read at the end and I will try to answer. Okay, now just starting with the exam. Exam paper कैसे आता है? Paper basically MCQs, सिर्फ MCQs आएंगे. BCPS में अगर किसी ने BCPS दिया है या उसको आइडिया है कि किस तरह होता है, तो BCPS में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने स्टीराइल कंपाउंडिंग दिया हुआ है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैच द फॉलोइंग होता है. लेकिन CPHQ में ऐसा नहीं होता, उसमें स्ट्रेट MCQs होते हैं. 4 ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपने चूज करना होगा. टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल क्वेश्चंस जो है वो 140 होते हैं. 15 आर द प्री टेस्ट एंड 125 जो जिनको स्कोर किया जाता है. 15 सिर्फ प्री टेस्ट होते हैं, उसमें हमें नहीं अंदर पता होता कि 15 कौन से प्री टेस्ट हैं. प्री टेस्ट का ये मतलब है कि उनका स्कोर, बेशक वो आपने गलत किया है या सही किया, आपको उसका स्कोर नहीं मिलता. You will not get the marks of the 15 pre-test questions. You will be just scored for 125 questions. Eligibility क्या है? कौन लोग सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन सकते हैं? कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो ये सर्टिफिकेशन कर सकता है. अगर वो सर्टेन सैंक्शन कंट्रीज हैं उनमें अगर ना हो तो वो कर सकते हैं, लाइक आई थिंक नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना एंड देयर आर सम अदर वेरियस कंट्रीज. वो लोग उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है क्योंकि वहाँ पर एग्जाम कंडक्ट नहीं होता, लाइक दे डोंट हैव द टेस्टिंग सेंटर और दीज काइंड ऑफ थिंग्स. लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है सबको, अगर आप लोग CPHQ करना चाहते हैं, आप फ्रेश हैं, यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड यू जस्ट स्टार्टेड वर्किंग इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन और समथिंग, डोंट गो फॉर द CPHQ एट द स्टार्ट. कम अज कम आपके पास 1 to 2 एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो हेल्थ केयर क्वालिटी क्या चीज़ है. जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ होता है क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस का जो मास्टर्स है, इट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग देन द CPHQ. हेल्थ केयर क्वालिटी जो है वो टोटली डिफरेंट थिंग है. एग्जाम की जो डेट्स होती हैं वो 4 times a year होता है. 4 दफ़ा विंडो ओपन होगी, आप लोग इनमें से किसी भी विंडो में पेपर दे सकते हैं. विंडो मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में ओपन होती है. ये विंडो ओपनिंग की बात करी हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप लोग 1 महीना पहले बंद हो जाती है. लाइक सपोज अगर किसी ने मार्च में पेपर देना है तो वो फरवरी के आई थिंक मिड में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है. जून में भी ऐसे ही है, विंडो जो होगी वो 6 to 19 ओपन होगी, लेकिन मई में जो है वो रजिस्ट्रेशन की विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी. लाइक इट मीन्स दैट रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सबमिट करवाने पड़ेंगे उनको बिफोर दैट टाइम. जून में ये है कि आपका पेपर होगा, आप उसमें चूज करते हो डेट कि आपने जून में किस डेट में देना है. एग्जाम के हवाले से और जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो ये है कि एग्जाम फ़ी क्या होती है. यूजुअली सबका यही कंसर्न होता है कि फ़ी, व्हाट विल बी द सर्टिफिकेशन फ़ी एंड व्हाट विल बी द री-सर्टिफिकेशन फ़ी. सर्टिफिकेशन फ़ी वो चीज़ है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू पे. Like suppose if you're not healthcare professional, you just want to go and appear in exam, you will pay $579.
$579 ये अकॉर्डिंग टू द 2021 इनकी हैंडबुक है, उसमें ये फ़ी लिखी हुई है, अपडेट होती है। आई थिंक जब मैंने दिया था तो इट वाज अराउंड 500 और माइट बी लेसर देन 500, नॉट श्योर एग्जैक्टली। रीसर्टिफिकेशन जो है वो भी इसी तरह $100 या $150 के अराउंड है। वो आप जो हैंडबुक होगी उसमें अगर आपने कभी भी पेपर देना है तो आप पहले हैंडबुक देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है एंड देन पे अकॉर्डिंगली। रीसर्टिफिकेशन यूजुअली 2 साल के बाद होती है, लाइक एवरी 2 years यू हैव टू रीसर्टिफाई। रीसर्टिफाई करवाने के लिए आपको एक तो फी पे करनी पड़ती है और दूसरा जो होता है ऑप्शन वो होता है 30 CME hours। दोनों चीजें आपको पूरी करनी होती है। यू हैव टू कंप्लीट द 30 CME hours एंड यू हैव टू पे। ड्यूरेशन यूजुअली एग्जाम की वो 3 hours होती है, लाइक यू हैव टू फिनिश, देयर इज नो ब्रेक्स इन बिटवीन, यू हैव टू फिनिश इन 3 hours। मार्किंग और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मार्किंग में ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू कैन गो लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू वांट टू, यू कैन गो फॉर इट। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं तो उसके बाद आप दे नहीं सकते, आप जितने भी अटेम्प्ट्स देना चाहते हो आप दे सकते हो। लेकिन इसका ये इशू होता है कि लाइक एवरी टाइम यू हैव टू पे। ये BCPS की तरह बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर BCPS में ये होता है कि अगर आप पहला एक फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो और आप पास नहीं होते तो विद इन 1 year आप सेकेंड अटेम्प्ट में लेसर फी के साथ दे सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। यू हैव टू पे एवरी टाइम द फुल फी if you won't clear at the first time. Assessment centers जो हैं वो पाकिस्तान में the locations are I think इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये बेसिक लोकेशन सेंटर्स हैं। सऊदी अरब में भी हैं, like you will find various लोकेशन सेंटर्स। UAE का I don't have a like good idea, लेकिन definitely वहाँ पर होंगे। अगर आपने लोकेशन सेंटर अपना ढूंढना है, you want to know where is the location center, you can go to the website PSI. I will try to share it at the end so you can know where you can find your location centers. Agar aap koi bhi candidate is disabled, like anyone who is disabled, they can also go for this certification and they can mail them the email you can see on the screen. Documents kya required hote hain, what you need. Basically कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, लाइक एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है और आई थिंक एक डिग्री आपको अपनी या बस वो भिजवानी, मतलब वो मेल करनी होती है उनको। ये आई जस्ट वांटेड टू से आई एम कंपेयरिंग दिस थिंग विद द बोर्ड सर्टिफिकेशन। BPS की मैं कंपैरिजन इसलिए करी हूँ क्योंकि काफ़ी लोग वो दे चुके हुए हैं या उनको पता है या उनका इरादा रखते हैं, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू कंपेयर कि इसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है। इस CPHQ में एज सच डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है वो आपको मिल जाएगा हैंडबुक में, वरना वो मेल करते हैं, आप उसको फिल करके भेज दो। लेकिन BCPS में ऐसा नहीं होता। BCPS में जो है वो आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू भिजवानी पड़ती है, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें ये इन चीज़ों की बहुत रिलैक्सेशन है। आप लोग एग्ज़ाम जो है वो क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं या फिर आप लोग चेक मेल कर सकते हैं उनको। एग्जाम स्केड्यूल और रीस्केड्यूल करने का प्रोसीजर है, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। आप उनको मेल करें, फर्स्ट आप NAC NAHQ में जाएं, वहाँ अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेल कर दें। उसके बाद आपको वो मेल करते हैं कि आप एलिजिबल हैं, फिर आप स्केड्यूल करते हैं। तो रीस्केड्यूल में भी यही होता है कि अगर आप लोगों ने रीस्केड्यूल करना है तो आप विद इन सेम विंडो, लाइक इफ यू वांट टू go for the exam in March and you booked on 6th March but you want to reschedule on 16th of March, so you can do it. लेकिन अगर आप नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट विंडो में अपीयर होना चाहते हैं, लाइक मैंने मेल कर दी है उनको, मेरे पास एलिजिबिलिटी लेटर आ गया है लेकिन मैं रीस्केड्यूल करना चाहती हूँ इन दिसंबर और व्हाटएवर, तो आप उनको मेल करके बताएं, पहले ही बताना होता है। अगर आप लोग उनको अपॉइंटमेंट डेट से 2 दिन पहले बताएं। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं तो आपको यू हैव टू रीपे, लाइक यू हैव टू रीपे टू स्केड्यूल अगेन। जितनी भी फीस होंगी वो सब नॉन रिफंडेबल होंगी, लाइक इफ यू पे इट वन टाइम, नेक्स्ट टाइम यू कैन नॉट रिफंड इट। लाइक सपोज if you booked in March and you want to reschedule but due to some reason you cannot reschedule,
they will not refund you the fee. So before you book, you have to be very sure that you have to appear for the exam. You are fully prepared for the exam. एग्जाम जो है वो ऑनलाइन भी ऑफर किया जाता है और ऑन साइट भी ऑफर किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन की रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि वो लोग आपसे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, like they will check everything in your room and like you have to share your screen. So ऑनलाइन की थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से this was easily accessible. I have known people उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया and they passed. रिजल्ट कब आता है और कैसे आता है, कितने मार्क्स में पास होते हैं? मार्क्स बेसिकली पासिंग मार्क्स का कोई सीन नहीं होता कि 125 में से अगर मैं 80% होगा या 90%, ऐसा नहीं होता. उनका एक तरीका होता है असेस करने का कि स्टूडेंट जो है वो उसका इतना नॉलेज है कि वो पास कर सकता है या नहीं. लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई गेव द एग्जाम, the passing marks were 89 or 90 I think. लेकिन recently I came to know 104 was the passing marks. So depend करता है, उनका अपना एक way of marking है, वो उससे mark करते हैं. Usually result जो है वो 8 to 12 weeks में आ जाता है. Like suppose अगर मैं मार्च में पेपर देती हूँ तो मार्च की closing window 12th है या 16 है, उसके बाद से आपने 8 to 12 weeks काउंट करने हैं. Like I think 2 months और 3 months आपका रिजल्ट आ जाता है. पास होने के बाद वो आपको मेल करते हैं और आपको ऑप्शन देते हैं, लाइक यू विल बी सर्टिफाइड, यू विल गेट आवर डिजिटल बैज ऑफ CPHQ. बैच जो है वो आपके पास 3 to 4 weeks में आ जाता है जब आपका रिजल्ट आता है. लेकिन अगर आपने पिन ऑर्डर करनी है, लाइक यू कैन जस्ट इफ यू जस्ट वांटेड टू हैव अ पिन ऑफ CPHQ, वो आपको परचेज करनी पड़ती है. वो आई थिंक $150 की है. सॉरी, इनकी कॉन्टैक्ट इन्फो है, अगर किसी ने पूछना हो या फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी हो, यू कैन मेल देम और यू कैन कॉल देम. उनका नंबर हैंडबुक में होगा. अगर आप लोग NAC ये NAHQ की इनकी वेबसाइट पे जाएं, देयर इज हैंडबुक देयर, यू कैन रीड फॉर द इंस्ट्रक्शंस इफ यू वांट टू. एग्जाम में आता क्या है? बेसिकली एग्जाम की 4 डोमेन्स हैं: ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, हेल्थ केयर, हेल्थ डाटा एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, पेशेंट सेफ्टी. 35 items ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, it does not mean that 35 questions will be appearing from there. It means that the 35% of the paper will be from the leadership. Leadership में basically like leadership style डिस्कस करेंगे, रेगुलेटरी और एक्रीडिटेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे, एजुकेशन डिस्कस करेंगे. लाइक उसमें आप जब पूरा एंड तक हमारे साथ कोर्स फॉलो करेंगे, we will be trying to, you will get the idea that what kind of the basic domains are there. क्योंकि लीडरशिप और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज एवरीथिंग आई थिंक इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इम्प्रूव और वांट्स टू गो फर्दर, लीडरशिप शुड बी इन्वॉल्व. आप ये नहीं कह सकते कि मैं सबको चेंज कर दूंगी हॉस्पिटल में, क्योंकि बेसिकली सर्टिफाइड प्रोफेशनल का मतलब यही है कि आपने हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है. तो डेफिनेटली यू हैव टू इन्वॉल्व द लीडरशिप. हेल्थ डाटा एनालिटिक्स में ये है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी, इसको शायद आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बेसिकली इसमें हम लोग डाटा, स्टैटिस्टिक्स और इस तरह की जो बेसिक डाटा को एनालाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, बेसिकली आप इसे कहें कि स्टैटिस्टिक्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि डाटा किस टाइप का होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एंड दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल बी डिस्कसिंग दैट. Performance and process improvement, very important, because I know that performance और process improvement से बहुत सारे questions आते हैं और really इनको एक तो interesting बहुत है और आपको really help out करेगा during, अगर आप अपने आप अपने hospital में process को improve करना चाहते हैं या कोई project करना चाहते हैं performance improvement का, तो अगर आपको basic understanding इधर से मिलेगी तो it will really help you out. बेसिकली इसमें हम लोग प्रोसेस इंप्रूवमेंट मॉडल्स डिस्कस करेंगे, टूल्स डिस्कस करेंगे, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स.
so you can know what is basically we are going, like what will we be looking into. Patient safety में हम लोग patient safety is really important. Like एक practical point of view से it's really important. इसमें basically हम लोग like RCA discuss करेंगे, FMEA discuss करेंगे. You will get to know what is RCA. It's basically root cause analysis. उसमें ये होता है कि आप like एक incident हो गया है, आप उसकी investigation करते हो और आप देखते हो कि क्या क्यों कहाँ पे प्रॉब्लम आई, नर्स का प्रॉब्लम था, फार्मासिस्ट का प्रॉब्लम था, फिजिशियन का प्रॉब्लम था, सिस्टम का प्रॉब्लम था. इन ये सारी चीजें जो आप उसमें पिन पॉइंट करते हो कि अच्छा यहाँ से ये सिस्टम हो सकता है, क्या पता सबने ठीक किया हो लेकिन बिकॉज ऑफ द सिस्टम एरर आप लाइक एरर रीच टू द पेशेंट. सो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको प्रैक्टिकली बहुत हेल्प करेंगी CPHQ अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं. अगर आप नहीं भी करना चाहते तो प्लीज मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, प्लीज गो फॉर इट. At least try to read it and understand it so you can at least have like basics के अगर कोई चीज स्टार्ट करनी है या फिर अगर आपने इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है तो आप कैसे इम्प्रूव करेंगे. टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं. 23% रिकॉल का मतलब ये है कि उसमें जस्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे. लाइक FMEA क्या होता है, फोकस PDCA क्या होता है, मतलब PDCA प्लान एक्शन एंड something like this. So they will just ask you straight questions. Application जो है 50% एप्लीकेशन में ये है कि आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि आप लोग कितने पानी में हैं. और एनालिसिस में आप लोगों को सिनेरियो दिया जाएगा और आप लोग एंड पे मतलब आपने सिनेरियो होगा. सिनेरियो का मतलब नहीं है कि बहुत लंबा सा सिनेरियो होगा, सिर्फ ये होगा कि एक ऐसे लाइक छोटा सा बिल्कुल छोटे से लाइक आई थिंक 2 लाइंस और 3 लाइंस के क्वेश्चंस होंगे और वो आपने एंड पे बताना होगा कि विच सूट्स बेटर. साइड में अगर आप लोगों को ये मेरी राइट साइड पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, इसमें एक सैम्पल क्वेश्चन है. उसमें अगर आप पूरी स्क्रीन इस तरह स्क्रीन आती है लाइक यू कैन सी द टाइम, आप टाइम भी नोट कर सकते हैं अगर आपने देखना हो कि आप क्योंकि 3 आवर्स का एग्जाम है तो इसलिए आपको टाइम अगर आपने नोट करना हो कि आपने कितना टाइम रह गया या कुछ भी, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अपीयर होंगे. अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मतलब कंफ्यूजन है या आप उसको फ्लैग कर सकते हैं, आप लोग दोबारा आगे पीछे क्वेश्चंस को स्विच कर सकते हैं. इस तरह नहीं है कि एक ही रो में आपने चलना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ऐसा नहीं है. आप स्विच कर सकते हैं और आप फ्लैग करें, आप वापस जाएं आपने अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में. references I'm sorry, can you just please unmute your mic. Anyways, references और study material आपने पढ़ना कहाँ से है. ये सारे references हैं जो रेड में हाईलाइट हुए हैं. बेसिक इन्हीं से ही आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाता है. स्पेशली नंबर 6 जेनेट ब्राउन, इट्स रियली यूजफुल, एंड HQ सॉल्यूशंस. अगर आप लोग पेड लेना चाहते हैं कोर्स, सो यू कैन गो टू एनी HQ वेबसाइट एंड रजिस्टर देयर, दे विल गिव यू द लाइव क्लासेस. और अगर कोई सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए पढ़ना चाहता है तो दे कैन रीड अदर रेफरेंसेस. And that was all about CPHQ. If you have any questions. Someone was asking about speaking English. Thank you so much, Dr. Sarwat. I have 2 questions from the participants. Okay. One is asking, Mohammad Hamad asked, can someone who is still studying but has internship experience apply for CPHQ? I think no, you have to have a degree of any healthcare professional. If you are still studying, no, you cannot. And personally, I told you with my point of with my experience, you should work in any healthcare organization to get to know at least the basics. Because आपको अगर ये नहीं पता कि हॉस्पिटल चलता कैसे है, एक प्रोसेस होता है नर्सेस का, स्ट्रक्चर होता है,
मतलब process हर चीज़ आपको अगर नहीं पता तो you have to really work hard. आप पहले बेसिक्स ले लें हॉस्पिटल के कि हॉस्पिटल चलता कैसे है, फिर आप जाएं, फिर आप CPHQ के लिए अप्लाई करें. Okay, thank I you. hope I Another hope I question is answered. from where we can view the outline of CPHQ exam. एग्जाम की आउटलाइन बेसिकली नहीं है. BCPS की जैसे आउटलाइन है, बहुत अच्छी आउटलाइन है BCPS की, लेकिन CPH की कोई आउटलाइन नहीं है. आपको बुक जेनेट ब्राउन एंड HQ सॉल्यूशंस, आप उसको बस पढ़ना शुरू करें. उसको एक एक चैप्टर पढ़ते हैं. ये इस कोर्स का बेसिक मकसद ही यही था. दिस actually someone wrote here that please speak in English, so I will try to speak in English. Actually, the basic point of this course was this, that we will give you a outline of all the CPHQ study material that you need to pass the exam. अगर आप ये पूरा सेशन लेंगे हमारे पास, if you will try to like go until the end, you will get to know that we will just give you what things are important and what you need to pass the CPHQ. Okay. Another question is, who should go for this course? Only those who will work in hospital. This question is from Sundar Shakur. Yes, anyone who is a healthcare professional can go for it. If you're working in industry, if you're working in ambulatory care, or if you're working as a research, like whatever, it's really difficult to understand the concept of CPHQ. Okay, might be you will have the idea how to do the statistic and how to do the data, how to like interpret the data, but the point I'm trying to say is this, that you must know the process of how the hospital works, like regulatory requirements kya hai, how the hospitals are being accredited, what are the standards, what are the basic standards. If you want to start a project, how you start a project. Like suppose अगर मैं प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अपने हॉस्पिटल में स्टार्ट करना चाहती हूँ, अपने डिपार्टमेंट में, तो मैं उसके लिए बेसिकली मुझे पहले ये देखना होगा कि मैं किस एरिया में इम्प्रूव कर सकती हूँ. मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ. हम लोगों ने वैंकोमाइसिन का हम लोगों को बहुत इशू था, बहुत फ्लक्चुएशन थी वैंकोमाइसिन की, तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं. उसमें हम ये देखेंगे कि पहले हम टीम ऑर्गेनाइज करेंगे, लाइक एवरीवन विल बी इन्वॉल्व, नर्सेस, फिजिशियंस, फार्मेसी, एंड एवरीवन इज इन्वॉल्व. ओके, हम लोग फिर वो उसमें पॉइंट्स देखते हैं कि अच्छा किस प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, ऑर्डर करने में प्रॉब्लम आता है, या फिर नर्सेस को ये नहीं पता कि बैंकों के लेवल्स कब लिए जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें कोलैबोरेशन ज़रूरी है. और आपको हॉस्पिटल का स्टाइल ऑफ वर्किंग इन हॉस्पिटल आपको पता होना चाहिए. लाइक I really appreciate the people who really wanted to go and they are not working as a hospital pharmacist, but if at least you should have the basics of the hospital environment, so you will understand, like your concepts will be more clear about the CPHQ. I hope this my answer Yes, was clear. another person asked, in a hospital pharmacist, Sonia, I hope this answer also clears her query also. Is there any experience certificate required from the hospital? No, it's not like BCPS that you have to, like BCPS, you have to ask your manager or your like hospital to give you experience letter of 4,000 hours. In CPHQ, no, you can just directly apply to the NAHQ website, and once they send you the eligibility letter or the number, you can book the exam. Okay, thank you so much. It was really helpful. Dr. Ashok Kumar, I don't understand your question. What type of volunteer work you are asking for? Please elaborate. I think that's enough. No. Okay, yeah. I think, yeah, that's. He's asking if ma'am should be work as healthcare volunteer. Yes, sure. You can work as a healthcare volunteer, and then you will have the basic idea of how the healthcare
like how the healthcare system works. एक चीज मैं बताना भूल गई. Questions usually copyrighted होते हैं. अगर हम इस प्रोग्राम में आपको कोशिश ये करेंगे कि हम खुद से क्वेश्चंस बनाकर आप लोगों को आप लोग देख सकें उसमें कि आप लोगों का नॉलेज कितना, हम खुद से ये कोशिश करेंगे. लेकिन क्वेश्चंस कॉपीराइट होते हैं. हम लोग कहीं जो एग्जाम में जो ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आप लोगों को, क्योंकि जो सर्टिफाइड होता है उन ये कॉन्फिडेंशियल होता है और कॉपीराइट होता है, तो इसलिए हम लोग उनके जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेंगे. लेकिन वी विल ट्राई टू डू आवर ओन क्वेश्चंस टू जस्ट असेस योर नॉलेज. I think that's it. अगर आप लोगों के further कोई questions हैं, so you can just email us or you can join us all the way to the end of the session and ask directly there. Yes, Sonia, this is what I was trying to tell you, that we will try to make own questions. हमारे स्पीकर्स जो हैं वो लाइक रैंडमली आपको एक्सप्लेन करेंगे, या माइट भी आपको एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो विद इन द प्रेजेंटेशन आप लोगों से पूछें. सो यू विल बी जस्ट इंटरैक्टिव. लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चंस, अगर कोई ये एक्सपेक्ट करा है कि हम ओरिजिनल क्वेश्चंस जो लाइक पास्ट पेपर्स होते हैं ये वाला ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनके क्वेश्चंस कॉपीराइट हैं. सो वी डोंट वांट टू, यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक. So if anyone has any questions, so please just ask or write down. Otherwise, we will be closing the session. I think we should close the session. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much, Dr. Sarwad. It was really helpful. Thank you. looking forward. At the end, yeah, thank you so much also. And at the end, I really like to appreciate the efforts of giving back to pharmacy in Pakistan, for providing us such a platform to just empower the pharmacist and other healthcare professionals.